Okay. So today what we are going to see is the section of view, right? And then we are also going to see a recap. Okay. When I teach you the subjects, I know I have taught you each and every topic. But because I have never taught you in sequence. मी कधीच sequence मध्ये शिकवत नाही. Because तुम्हाला तशा गोष्टी लक्षात राहत नाही. Right? So then जसं subtotal साठी sorting गरजेचं असतं. Right? So that way related topics I have taught you. But then just in case you feel that something is missing, we'll just recap the entire thing. All right? Fine. So first we are going to see something called as the view. We have seen this view first in the first lecture also. All right? In Excel, there are different types of views. Remember, normal view is the first view, the one which you daily work with, right? The other one is the page break preview, right? So page break it is showing you where the pages end. Why this happens? Because you know that Excel, the worksheet is very big actually. There are 16,000 columns, 10 lakh rows. So actually the sheet is very big. But when you are printing, you cannot have an endless sheet. You have a A4 size paper, which is limited, right? So that size paper is what it is showing you. So whatever you set under page layout, the size, that size you are going to see it under the view page break preview. Got it? So that is why this page break preview. And you can adjust your page breaks. This also we have seen last time, right? Next is page layout. Page layout is where you have the header and footer available. So in every file, on every paper, there is a specific space, either at the top or the bottom. If it is at the top, it is called as a header. If it is at the bottom, it is called as a footer, right? But this is a special place for special text. Special text can be the name of the table, the name of the file. You can also put page numbers. So if you activate the header and footer, you will see header and footer is open. And you can see page number over here. You can see the code behind it, but when you come out of it, you will see the actual page number, right? And number of pages, you can actually mark it over here, number of pages, right? Or else you can also give the name, जैसे current date है, current time है, current file name is there. Everything, these things you can insert. You can also put a logo. So through a picture, you can put a logo which comes on to every page. Got it? So these things you can put over here. And that's the page layout view, right? So can you see this is the time? The time at which it will be printed will be recorded over there. Here, right? Page number of pages. Okay. And if you go towards this side, you can see. So it doesn't have a page number because there's no text on this. Now it is gone. Okay. So these views we had seen in the first lecture, remember? Before we started working. So you are doing your work every day in this particular view, normal view. But apart from this, there are a lot of other sections which you should know. View, as the name indicates, देखना, to see. All right? काय बघायचंय आपल्याला. That is what is going to be governed by the view section, right? So then here the first one is navigation pane, which is very useful खरं तर, right? मी मुद्दाम हे ना नॅव्हिगेशन पेन जे सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत ना, शॉर्टकट फटाफट त्या शेवटच्या लास्ट लेक्चरलाच घेत असते. बिकॉज तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरला शॉर्टकट फटाफट शिकवलं तर तुम्ही मेहनतच करत नाही, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बघायला, राईट? सो दिस shortcut फटाफट is there. This you can use now henceforward in your life. Navigation pane, when you open, you get all the sheet names over here directly. You don't have to sit and scroll over here. Right? You can directly pick and go to that particular sheet, which is definitely much more easier for you. Got it? Right? So navigation, the name it indicates moving from one point to another point. That is called as navigation. So you wanted to move from one point to another point, means you wanted to go from one sheet to another sheet, you can quickly jump onto that particular sheet, right? So that's navigation for you.
Now in this, you have other views also, like I want to see the grid lines or I don't want to see the grid lines. Look at this grid line. See, there is something called as borders and shadings. But behind the borders, there are some specific lines called as grid lines. What you can see as gray lines over here are called as grid lines. Okay. That is the structure of Excel sheet. त्या grid lines च्या वर border set होत असतात. Got it? So these are the grid lines. If I say I don't want to see the grid lines, you will see the page is blank, right? I want to see the grid lines. So it's your choice. Normally grid lines on ठेवलेले कधी बरं पडतात. You find it much more convenient. Formula bar. Now the formula bar is an important section. You know that you want to put it on. You can put it on from here. And then there is also an option over here. Can you see? You can increase the size of the formula bar or you can decrease the size of the formula, right? But what to see and what not to see is what this particular section is all about, right? Then there is headings. Do you want to see the headings? Headings are column headings, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Do you want to see them or not? Right? So that's the headings and not. Focus cell. So if I click on this cell, sometimes what happens when you're working in your Excel, you don't remember where your cursor is, right? So you can always put this focus cell option on. Can you see? So wherever is your cell, it is highlighting. I purposely did not put here because then it is green. So you couldn't have understood. And go ahead with this focus cell, right? Under focus cell, you can focus a color. You can make the changes into the color. You can have it into big as well, right? So focusing of the cell, you can go ahead, show auto highlight. Okay. Auto highlight means जे select केले ते highlight करायचं. Okay. That is important. Okay. Data type icons. Now data type is, if you remember that data type, let me just open the navigation pane. We had a data in this, right? So I had here. You remember this particular section called as data and types. Here, can you see? I had a geography on, suppose. Okay. So Boston जो है उसका geography मैंने on किया है. This is the data type icon. So you can see the small icon over here. Can you see? Right? Do you want to see that icon or not? Is your choice. Got it? Data type. So this feature is available in the latest versions. I don't know whether it's available in the lower versions. You'll have to check it out. But you must know this. Okay? All right. Let's move to the next. Then is the zooming section. Zoom you have already used always. You have the zoom from here. You can mention it. I want to go for 200% zoom. You have the scroll bar, जिससे आप zoom कर सकते हो. You can actually go ahead scroll zooming at the bottom also. Yes or no? You remember this small thing, right? You can do it with control and scroll bar also. So a lot of zooming options over here. Zooming 100%. Okay. Then zoom the selection. जो भी select किया है उसको zoom करेगा. Sure. I want to see it that way. I want to see it the way I want it. There. How to see your document is all about view. Okay. Common sense, yeah? I know. Okay. Now comes this section, macro. Macro is for a person. Actually, it's a very simple concept. It means that you can record some steps and especially the commands of Excel. And you can repeat those particular steps as many ever times you want. Okay. Means what? It is kind of a, see, suppose you are recording your own voice. Okay. And then you listen to the voice again and again through a tape recorder maybe, or in your mobile you have recorded that thing. So it works similarly like this. Now what can you record? I'll show you here. You can also try out with recording of a macro. It's called as a macro actually. So it's a small program which gets formed. All right. So karna kya hai? First you have to go ahead with clicking on record macro. See, because it's a recording, whatever steps you are going to use for recording, the same steps you have to use over here. So means what? First you are going to press the record button. Yes or no?
right? Then you are going to record, you're going to speak something, right? Once you finish that, then you are going to stop the record button. Na? And then you are going to play the recording, right? So these 4 steps you have to do here also. So let's do that. First is record the macro. Click on record macro. Here, because there is no manual button, you'll have to just name the button, because otherwise you will forget what it was made for, right? So suppose I wanted to put the logo of my company every now and then. It's a repetitive task. So why would you do the recording? Because you wanted to listen to it every now and then. Yes or no? You wanted to repeat recordings, right? So you are actually preparing macro, logo. You can give a shortcut key. All right. A shortcut key here, I am using L, Control plus L. And this macro is to be put only in this workbook or in my entire this thing. So I'll just keep it to this workbook. You can describe what it is. Logo of the company, right? So this is the macro button you are just pressing. You have not yet pressed. When you press OK, then the recording will start. All right. So here you created the button first. Okay. Now when I click on OK, यहाँ से आगे जो भी मैं perform करूंगी वो सब record होने वाला है. This you have to be very careful what you're doing, right? So when I click on OK, now I start with inserting illustration. I'm putting a shape maybe like this. That's my logo. I can take it from some file also, right? So this much status, I'm recording the actions. So I have recorded the actions, right? Now I want to stop the recording. I'll go into view, macro, stop the recording. That's it, right? Here it is, done. Now, so I press the button, I created the button, logo button. Control L is the shortcut key that I've used, right? Second, I recorded. What did I record? I inserted one particular small picture, right? Third, I stopped the recording. Yes or no? And now my work is playing the recording. Means what? That I wanted to run this particular logo every time. So I don't have to go into insert, find that particular logo, search that logo, insert the logo. It's going to take a long time. Yes or no? For me. Instead, I have the shortcut key now, Control plus L. It's going to give me the logo. Control L, Control L. इसको हटाओ तो आपको सभी दिखाई देते हैं, नहीं तो एक ही जगह पे रन हो रहा है ना. 3, 4, 5 मिनट 5 बार रन किया है. Can you see? तो जितनी बार आपको वो लोगो चाहिए उतनी बार आप कंट्रोल एल, यहाँ पे कंट्रोल एल मैंने यूज किया है, वो आप रन करो, राइट? फाइन. मीन्स योर पर्टिकुलर रेपिटेटिव टास्क हैज गॉट रिकॉर्डेड, राइट? वैसे तो मैक्रो में बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते. प्रॉब्लम इज दैट स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विथ द टेक्स्ट, जैसे टेबल है, कोई टेबल आपने बना दिया, उसको रिकॉर्ड करके रख दिया, तो डेली व्हेन यू आर कमिंग हियर यू आर जस्ट रनिंग दैट मैक्रो ऑफ दैट टेबल, तो इट रन्स ऑन द स्पेसिफिक शीट, स्पेसिफिक प्लेस. ओके. तो कभी कभी आपको है ना मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ जाती है मैक्रो. तो मैक्रो में मॉडिफिकेशंस आर नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन. सो व्हेन आई से कॉमन पर्सन means a person who does not know programming language at all, उस बंदे को चेंजेस करना इज इम्पॉसिबल. पर जिसको प्रोग्रामिंग आता है वो बंदा उस पर्टिकुलर मैक्रो में जा सकता है एंड उसको वो एडिट कर सकता है. सो आई गेस people those who know micro visual basic, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन विजुअल बेसिक एज द लैंग्वेज. अगर आपको ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज आती है तो आप इसमें जाके चेंजेस कर सकते हैं, एंड देन यू हैव द पावर टू डू एवरीथिंग. इसीलिए पीपल गो फॉर प्रोग्रामिंग. ऑलराइट. सो एडिटिंग अप फॉर मैक्रो इज नॉट इजी, इट नीड्स प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग. लेकिन ऐसे छोटे छोटे आप ये वाले जो मैक्रोज है इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट एडिट योर मैक. गॉट इट? राइट. नाउ
If you wanted to delete the macros, just go into view macro section. This logo, this thing, you can delete it. Click on yes and then yes. So यहाँ से आगे Control L दबाओगे तो वो आने वाला नहीं है. Can you see? Got it? Right? So macro is to record a repetitive task. Repetitive task आप use कर सकते, ठीक है? And those who are interested in learning programming languages, do learn the programming languages. You can edit your macros very nicely. It's an entire career in itself. Okay. अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. ऑलराइट, फाइन. सो दैट इज अंडर द मैक्रो सेक्शन हो गई. डन. सो which is coming under view. View उन्होंने दिया है because you can view the macros or record the macros. But be very careful when you're doing this, because when you start recording and you forget to stop the button, record button दबाना भूल गए आप, stop करना भूल गए, तो जितना काम कर रहे हो सब record होती जाएगा. So you have to be very careful about what you are doing. Again, one more I am showing you. Suppose I wanted to make changes in the color, right? So मैं क्या करूँगी? I'll go into the macro. I'll say I want to record a macro. So let me create a macro. Recording a macro. I wanted to change color. I'm just giving color to it. Control C is for copy. तो ये यूज मत करो. कंट्रोल क्या कह सकते हैं, आर कुछ लगा देंगे हम उसको, राइट. एंड आई एम गिविंग कलर. नाउ आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. Whatever is the selection, I'm going into home. I wanted to make the color like this. बड़ा करना है. Whatever you wanted to change, right? Then I go back into my macro. Stop the recording. ये हो गया, ठीक है. अब मुझे अप्लाई करना है, तो आई एम सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ द टेक्स्ट एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग कंट्रोल आर. ओके. सो जो भी 4-5 स्टेप्स किए थे वो एक ही क्लिक में हो जाता है या फिर एक ही बटन में यूज हो जाता है. यू कैन ऑल्सो अप्लाई from here. Suppose I wanted entire this thing and I wanted to apply. I can go into view macros and I'm going to select the color macro and I'm just going to run it. So you'll see it gets run over here. All right. So repetitive tasks. Remember, repetitive tasks is what you can do in this particular section. There. Got it? Right? Okay. So we are seeing the view section. Now come to this particular Windows section. Right? बहुत बार ना काम करते वक्त आपको एक ही शीट के अलग अलग व्यूज देखने पड़ते हैं. Right? So suppose you wanted to see the beginning of this table and the end of this table. Suppose you had a lot of data. I'm just copy pasting some data. And हम चले गए कहीं और लास्ट फादर प्लेस. हाँ, उसको मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया जस्ट फॉर रेफरेंस. सो बीच में बहुत अंतर है या फिर the table itself is very big. You don't know, right? So you wanted to see the first part and that part also on the screen. अभी क्या हो रहा है? If you wanted to see that table, आपको एक तो उस टेबल को नाम देना पड़ेगा, है ना? फॉर्मेट एज टेबल, या फिर आप उसको पहले एक नेम दे दोगे, डिफाइन नेम करोगे आप, and then you control G, go to that particular table. Remember all that stuff, right? But then it's a tedious job. आपको नाम नहीं देना है, लेकिन वो दोनों भी पार्ट्स आपको एक स्क्रीन पे लाने हैं. Means what? You wanted to see two parts of the same sheet on the screen. Two parts of the same sheet on the screen. Okay. So there you are going to use this view section, this part, right? First is you can split, right? So to see, ये लिख के रखो, to see two parts of the same sheet, use split.
तो स्प्लिट अप है ना, वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, और चार पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। ना आई वांटेड कॉलम्स ना, ठीक है, तो मैं कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्प्लिट इट. When I click on this column and I split this, so you will see there is a margin kind of a thing which has appeared. Can you see ये वाला, right? इससे क्या हुआ है, मिरर्स क्रिएट हो गए. See, can you see this? तो ये पार्ट स्टार्टिंग का पार्ट है, ये पार्ट में आप स्क्रॉल कर सकते हो उस जगह पर एंड नाउ यू कैन सी बोथ द व्यूज ऑन योर स्क्रीन. Yes. So to see two different parts of the same sheet, you are going to use split. All right, fine. निकाल देना है स्प्लिट. एक तो आप यहां से ऑफ करो या फिर इस स्प्लिट के ऊपर डबल क्लिक करो, वो निकल जाएगा. वैसे ही अगर आपको स्टार्टिंग के रोज एंड एंड के रोज साथ में देखने हैं, तो आप कोई रो सिलेक्ट करोगे एंड इसके ऊपर आप स्प्लिट करोगे. Now you have a horizontal split. Yes. यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल, कैन यू सी, ये नीचे का पार्ट है देखो, राइट. सो दिस इज 1 to 16 एंड यहाँ से 200 से लेके आगे के रिकॉर्ड्स. इसके आगे भी आप जा सकते हो. लास्ट रोज ऑफ द सेम शीट. यस. सो आप देखोगे, यू गो टू, सो इट्स अ मिरर इमेज एक्चुअली. ये मिरर इमेज है, but you can have two different views of the same sheet. Got it? निकालना है, just go to that view, off कर दो, निकल जाएगा. Now you can see 4 parts of your entire sheet. वो भी कर सकते हो. Means what? Suppose I wanted 4 parts. मुझे ये पूरा screen जो है ना 4 में divide करना है. So what I'll do is I'll select any one बीच में वाला cell. ठीक है? And then I click on split. अभी क्या हो रहा है देखो. So there are 1, 2, 3, 4 parts यहाँ. This section, स्टार्टिंग के कॉलम्स, स्टार्टिंग के रोज. ये सेक्शन में अगर आप आओगे एंड यू गो बाय कंट्रोल एरो की, कैन यू सी, लास्ट कॉलम्स बट फर्स्ट रोज, स्टार्टिंग वाले रोज एंड लास्ट कॉलम्स देखते रहो. यहाँ पे यू गो डाउन, कैन यू सी, स्टार्टिंग वाले कॉलम्स है, लास्ट वाले रोज है. यस. एंड यहाँ पे लास्ट कॉलम्स, लास्ट रोज. मीन्स व्हाट, एंटायर जो आपका एक्सेल शीट है उसके 4 पार्ट्स आपने कर दिए. सभी पार्ट्स आप साथ में ही देख रहे हो एक स्क्रीन के ऊपर. यस, राइट. निकाल देना है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे निकल जाएगा, स्प्लिट निकल गया. सो हियर इट इज, कैन यू सी, स्प्लिटिंग. गॉट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट इज कि ये तो हो गया मुझे एक ही शीट के अलग अलग पार्ट्स देखने. व्हाट इफ आई वांटेड टू सी 2 डिफरेंट शीट्स एट द सेम टाइम. मुझे ये दोनों शीट्स साथ में देखने हैं. अब क्या करूं, है ना. I wanted to see 2 sheets at the same time. Got it? तो ऐसे सिचुएशन में you have something called as a new window option. Okay? Now see very nicely over here. अगर मेरे पास फाइल है तो ये फाइल एक ही है. Yes? इसके साथ में और दूसरा कोई फाइल मैंने खोला नहीं है. Yes? Okay. Let's see. I first create a new window. ठीक? तो मैंने क्लिक कर दिया इस न्यू विंडो के ऊपर. Can you see there is file name 2, माने 2 विंडोज खुले हैं. अब ये एक के पीछे एक है. ऑलराइट, फाइन. तो आपको है ना विंडो खोलने के बाद उनको अरेंज करना पड़ेगा. तो क्लिक ऑन अरेंज एंड देन द इजीएस्ट इज द वर्टिकल फॉर्मेट, क्योंकि आप दोनों साइड बाय साइड देखना चाहते हो तो वर्टिकली रखना चाहते हो. यू क्लिक ऑन वर्टिकल एंड क्लिक ऑन ओके. यू विल सी ये दोनों विंडोज खुल गए. अब एक विंडो के अंदर आप शीट 3 ओपन कर दीजिए. कैन यू सी, यहाँ पे तो ये डेटा भी दिख रहा है आपको, ये डेटा भी दिख रहा है.
सो ये आपका डेटा था और ये पाइवेट टेबल्स थे, डेटा था, पाइवेट टेबल्स थे, आप देख सकते हो साथ में ही, राइट। सो कैसे किया हमने इसको, हमने क्या किया, अच्छा क्लोज करते वक्त, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट विंडोज ऑफ द सेम फाइल, एक ही फाइल है वो, राइट। तो कोई भी आप बंद भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज एक ही फाइल खोली है आपने, एक्चुअली आइडियली एक ही फाइल खोली है, गॉट इट। सो हियर यू आर डूइंग न्यू विंडो एंड देन अरेंजिंग देम, ऑलराइट। अब आपको है ना, यू वांटेड टू सी डिफरेंट शीट्स also and different files also. अब जब दो शीट्स आपको देखने हैं तो आप न्यू विंडो ही खोलोगे एंड अरेंज करोगे। अब मुझे दूसरी और एक कोई फाइल भी देखनी है इस फाइल के साथ, तो मुझे अभी 3 चाहिए विंडोज, करेक्ट, 3 विंडोज आई वांट, ओके। नाउ बिफोर दैट, जो फाइल आपको खोलनी है, जो कंपेयर साइड बाय साइड रखनी है, उसको आप खोल लो पहले। सो डैशबोर्ड वाला फाइल खुला है, लेट मी ओपन सेल्स डेटा वाला फाइल, राइट। सो आई एम ओपनिंग दिस, ठीक। I go into the dashboard sites, that's because we are working over here. अब व्यू में जाके आप न्यू विंडो पहले खोलोगे, गॉट इट। व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू सी एक ही फाइल के 2 पार्ट्स दिखने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगी, न्यू विंडो खोलूंगी, डन। अब मेरे पास है ना इस फाइल के 2 विंडोज एंड एक अलग सी फाइल, ऐसे 3 पार्ट्स सामने हैं, यस और नो। ये देखो, यहाँ पे देखो, डैशबोर्ड 1, डैशबोर्ड 2 विंडो, एंड ये थर्ड फाइल नीचे तो दिख रहा है आपको, लेकिन यू वांट इट ऑन द स्क्रीन। तो ऑन द स्क्रीन आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू गो अहेड विथ व्यू, अरेंज ऑल द विंडोज, एंड आप अरेंज करोगे। नाउ नॉर्मली वर्टिकल इज ऑलवेज बेटर, अगर आप टाइल फॉर्मेट रखना चाहते हो, टाइल माने टाइल्स, जैसे आपके बाथरूम के टाइल्स, किचन के टाइल्स लगे हुए हैं ना, तो वैसे वाले टाइल्स लगेंगे वहां, राइट। तो यू वांटेड टाइल्स हॉरिजॉन्टल, माने एक के ऊपर एक ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसे, राइट, फाइन। एंड कैस्केडिंग, कैस्केडिंग मीन्स वन अबव द अदर, पत्ते अगर हम कैसे अरेंज करते हैं ना, कार्ड्स खेलने वाले जो कार्ड्स है ना, अपने पत्ते जो है ना, वो अगर आप एक के ऊपर एक सेट करते हो तो उसको कैस्केड कहते हैं, ऑलराइट, फाइन। तो आई वांटेड टाइल, आई क्लिक्ड ऑन ओके। अब देखोगे आप यहाँ पे, यू हैव, नाउ दिस इज डैशबोर्ड वाला डेटा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डेटा चाहिए इसके अंदर का। तो मैं डेटा भी देख रही हूँ, मुझे पाइवेट्स भी दिख रहे हैं, एंड नाउ देयर इज अ न्यू फाइल ओवर हियर, कैन यू सी, दिस इज अ न्यू फाइल आल्सो। तो ये तीनों भी अरेंज हो गए। At any point of time I can do work over here also, see it, of course window की जगह थोड़ी कम हो जाएगी, but then you can see the values together, साथ में तीनों भी देख सकते हो आप, got it। Now whatever changes you make over here, because this is a different file, ये दोनों एक ही फाइल के पार्ट्स हैं, तो ये क्लोज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगा। जब आप इसको क्लोज करने जाओगे तो ये पूछेगा कि आपने इसमें चेंजेस किए हैं, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, ऐसे सेव, तभी वो क्लोज हो जाएगा। सो अलग फाइल्स हैं, उस फाइल्स के अंदर आपने चेंजेस कर दिए हैं, तो उसमें सेविंग के लिए पूछेगा आपको बंद करते वक्त, ओके। बट देन व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन ओपन डिफरेंट फाइल्स आल्सो टुगेदर, और साथ में दोनों फाइल्स में काम कर सकते हो, गॉट इट, राइट। आई हैव वन मोर, जैसे मैंने यहाँ पे, आई एम जस्ट ओपनिंग मल्टीपल फाइल्स ऑफ द सेम, सॉरी, विंडोज ऑफ द सेम फाइल। अब क्या करूंगी मैं, आई एम जस्ट अरेंजिंग ऑल ऑफ देम जस्ट टू सी द अरेंजमेंट्स, हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे दिखाई देगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, माने दिस इज अ सेपरेट दिस थिंग, दिस इज अ सेपरेट विंडो। इसको देखना है तो आपको इस तरीके से, यू नो, यू हैव टू, पर हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, यू डोंट हैव मच स्पेस टू सी, कैन यू सी, ये, राइट, इस तरीके से, राइट, यहाँ पे, ठीक। आई विल जस्ट गो इनटू एनी वन ऑफ देम। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग एंड इंक्रीजिंग द साइज। एक का मैं चेंजेस कर लेती हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अरेंज ऑल ऑफ देम इन द वर्टिकल फॉर्मेट। सो वर्टिकल में कैसे ना जगह ज्यादा मिल जाती है आपको काम करने के लिए, यू कैन सी द वैल्यूज, यू कैन सी दिस बेटर। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, हियर इट इज, यू कैन एक्चुअली गो अहेड विद द अदर स्क्रीन, दिस थिंग आल्सो, राइट। या फिर आपके पास, यू नो दैट यू हैव द विंडोज नेविगेशन ऑप्शन, तो आप जाओ, आपकी विंडोज नेविगेशन के सेक्शन में चले जाओ,
here. Yes, and you can shift to that particular stream. It's a bit difficult, but you can actually work with multiple files together, right? अब इसका फायदा और भी होता है कि अगर आप इस शीट के अंदर इसके वैल्यूज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट? मीन्स व्हाट, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग लाइक दिस, थोड़ा आगे चले जाते हैं यहाँ पे, ओके? आई एम पुटिंग इज इक्वल टू सम ऑफ, आई गो टू दिस पर्टिकुलर शीट एंड मैं इस शीट के कुछ नंबर्स पिक करती हूँ एंड आई एंटर, कैन यू सी? सो इफ यू वांटेड टू पुट अ रिमोट फॉर्मूला, वो पॉसिबल है इजीली विद द हेल्प ऑफ व्यूइंग डिफरेंट फाइल्स टुगेदर या फिर व्यूइंग डिफरेंट शीट्स टुगेदर, ऑलराइट? अब नहीं चाहिए, आप एक ही फाइल के खोले हैं तो मैंने आई एम क्या जस्ट सिंपली डिलीट ऑल ऑफ देम एंड एक ही विंडो में ओपन करके रख सकते, ऑलराइट, राइट? एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये वाला जो फाइल है ना, जैसे हमने वी हैव टेकन इट फ्रॉम सम डिफरेंट शीट, है ना, वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट शीट। अगर आप इस फॉर्मूला का फॉर्मूला ऑडिटिंग करते हो, मींस यू ट्रेस इट्स प्रीसीडेंट्स, आप देखोगे ये कुछ अलग सा सिंबल दिखा रहा है, लेकिन means the data is not on this sheet, the data is from some other table, and if you wanted to trace the table, ये जो dotted arrow है ना, ये वाला, इसको आप थोड़ा सा डबल क्लिक करो, वो बोलता है यहाँ पे जाओ, जाके डेटा दिख कौन सा डेटा है, राइट? सो दैट्स वन मोर थिंग। सो व्यू देख रहे हो आप, अरेंज कर, न्यू विंडोज खोलोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अरेंज करोगे, राइट? आई एम शोइंग यू वन मोर फीचर उसी का। जब आप अरेंज कर रहे हो तो देयर इज अ कैस्केड इफेक्ट आल्सो, एंड ये आपका चॉइस है, विंडोज ऑफ एक्टिव वर्कशीट ही आपको ये करना है या दूसरे दूसरे फाइल्स को भी ये करना है, इट्स योर, दैट्स कॉमन सेंस, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। विंडोज कैस्केडिंग का मतलब है कि एक के ऊपर एक, ये देखो यहाँ पे ना एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, देन कैन यू सी ये वाले मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ना यहाँ पे देखो, राइट? बट देन नो यूज ना, आपको ये हर बार ऐसे मूव करके देखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग दैट वर्टिकल इज ऑलवेज मच बेटर जब आप अरेंज करते हैं, यू विल गेट मोर स्पेस टू वर्क, ऑलराइट? Vertical या फिर timed, that's your choice. Done? So that's what we are going to see the view. Now in this there is one more small view which is called as the freezing of the panes, ठीक है? ये बहुत यूजफुल है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। फ्रीजिंग ऑफ पेन्स का मतलब क्या है कि यू नो दैट आपका जो टेबल है ना, इसकी जो टाइटल्स हैं, जहां जब तक यहाँ पर एंट्री कर रहे हो आप, ये तो टाइटल्स दिखाई देते हैं, एज सुन एज यू गो डाउन वो टाइटल चले गए, फिर याद नहीं आ रहा है, अच्छा ये कौन सा कॉलम है, ऊपर जाके देखो, फिर से कॉलम कौन सा है, ऊपर जाके देखो, दैट इज वेरी टीडियस। ऐसे सिचुएशन में यू आर गोइंग टू फ्रीज, नॉर्मली यू फ्रीज द फर्स्ट रोज या फिर फर्स्ट कॉलम्स, राइट? तो आप अगर डायरेक्टली फ्रीज में जाओगे तो ये बोल रहा है फ्रीज टॉप रो या फिर लेफ्ट कॉलम, योर चॉइस। आई एम फ्रीजिंग द टॉप रो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यू सी देयर इज अ डार्क लाइन ओवर हियर, कैन यू सी? ये ब्लू लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये डार्क लाइन दिख रही है यहाँ पे ग्रे कलर की, कैन यू सी? यस, मीन्स व्हाट, दैट नाउ हाउएवर डाउन यू गो, कितना भी नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे, ये जो टाइटल है वो आपको हमेशा सामने दिखेगी। सो यू हैव फ्रोजन द फर्स्ट रो, फ्रीज कर दिया आपने पहला वाला रो, गॉट इट? यू गो इनटू द फ्रीज पेन्स, अनफ्रीज द पेन्स, देयर इट इज, ठीक है? ऐसे ही आप कॉलम भी फ्रीज कर सकते हो। अब अगर मुझे है ना रो एंड कॉलम दोनों भी फ्रीज करना, then what I'm going to do is I'm going to select this cell, क्योंकि इस सेल के ऊपर वाले रोज एंड इस सेल के लेफ्ट वाले कॉलम्स वो सब फ्रीज होने वाले हैं, ऑलराइट? so when I click on freeze, I say freeze panes only। अब क्या, आप कितना भी नीचे जाओ तो भी आपको रो, वो जो टॉप वाली रो है वो दिखाई देगी, एंड आप कितना भी इस तरफ चले जाओ आपको पहला कॉलम दिखाई देने वाला है किसी भी हाल में, ऑलराइट, राइट? एंड ऑब्वियसली काम करते वक्त एक वक्त में एक ही काम करने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू रन हियर एंड देयर, राइट? So that is freezing of the freezing, unfreeze कर दिया, निकल। Now whatever features you are seeing in Excel, ये सभी features Google Sheets में available हैं, most of them,
लाइक द अदर डे मानसी वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट पाइवट टेबल्स, जो बोल रहे थे पाइवट टेबल्स है नहीं गूगल शीट्स के अंदर। गूगल शीट्स में पाइवट टेबल्स हैं, गूगल शीट्स में फ्रीजिंग पेन्स हैं। सो सम बेसिक फंडामेंटल थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, ऑलराइट। तो जैसे आपने आपके पास, अगर आई एम जस्ट ओपनिंग आवर ऑफिशियल मेल यहाँ पे, तो देर इज दिस ड्राइव, रिमेम्बर। आप जब भी फाइल का काम करते हो तो ये गूगल शीट्स तैयार हो जाते हैं इसमें, इसी के हमने कुछ फाइल्स बनाए हुए हैं, ये वाले हैं। यस, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस पर्टिकुलर डेटा, दिस इज ओपनिंग इन गूगल शीट्स, कैन यू सी दिस इज ऑल गूगल शीट्स, हाँ या ना। इसमें भी व्यू ऑप्शन है, इसमें भी फ्रीजिंग है। यस, थोड़ा सा यहाँ वर्ड्स में अलग होगा बट द मीनिंग इज द सेम। सो अगर आपको एक्सेल आता है तो यू विल बी एबल टू डू एनी डैम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। लिबर ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है, जोहो शीट्स आर देयर, गूगल शीट्स आर देयर, स्टार ऑफिस शीट्स आर देयर, हर एक में काम कर सकते हो आप। हाँ, एक्सेल जितना आसान नहीं लगेगा आपको, बिकॉज एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी गुड इन मेकिंग थिंग्स इजी फॉर यू। इजी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे आप कि व्यू करना है, मुझे फ्रीज करने हैं पेन्स को, व्यू करना है, तो यू शुड गो इनटू द व्यू ऑफ दैट सॉफ्टवेयर ऑल्सो। ये कॉमन सेंस है, इस तरीके से ही आप है ना अलग अलग एप्लीकेशन सीखोगे। गॉट इट। सो एक्सेल जिसको आता है उसको बहुत कुछ बाकी की चीजें आने लगती हैं, ऑल सॉफ्टवेयर यू बी एबल टू हैंडल। नाइस, ऑलराइट। कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते, सभी कॉन्सेप्ट एक जैसे, पाइवेट टेबल का ही कॉन्सेप्ट है, ओके, इवन इन गूगल शीट्स, ओके। Okay, so that's under the view part. So this is all about views, अलग-अलग views हैं. And this switching windows is just like, अच्छा आपके पास multiple windows हैं तो आप arrange करोगे इसको. I have arranged it into the vertical. Done. मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ. That same thing you can do through switching. Switch windows यहाँ पे जा रही है. तो इतना लंबा क्यों जाना है ना? You can just click here and here. So that is the meaning of switch windows. Right? Again, multiple windows मैं खोल रही हूँ and I'm just arranging them in the vertical format. Okay, done. 3 of them are coming here. अब यहाँ पे windows scroll करते वक्त ना I can see windows side by side. 1 and 3 मैं देख सकती हूँ. Alright. So these are minor things, but that's not very great. ठीक है. I'm closing this. मेरे पीछे audit है. There it is. ठीक है. So these are different windows to see different views. Is this clear? Yeah. Okay. Quick recap करोगे इसका view का? Yes. Try this out quickly. Yeah. Points. Let's see something under insert. Actually, insert feature is, I think word मध्ये तुम्ही कधी word शिकला असाल, PowerPoint शिकला असाल, तर बरेचसे याच्यातले features repeated आहेत. Okay. The most important parts I have already covered. For example, insert options में pivot tables है, recommended pivot tables are there. Forms, this section is only in my PC. It's not there in any other PCs. It makes your, it generates a form actually. जैसे form होता है ना, name, email ID वगैरह वगैरह, तो वो form हम share कर सकते हैं किसी के भी साथ. So that's a new feature for business. Illustrations में pictures. I hope you have seen pictures, different kinds of pictures. अभी latest जो business office है, in that you will see you can put the picture inside one cell also, या फिर आप पूरे फाइल के अंदर डाल सकते हो. That's a special feature which has come down. So आप कोई भी एक सेल सिलेक्ट करते हो, इसमें पिक्चर डालते हो, तो आई एम जस्ट पिकिंग अप सम नॉर्मल पिक्चर, माउस का पिक्चर डाल दिया मैंने. सो जहां पर भी वो सेल है, उस सेल के अंदर वो पिक्चर चला गया. राइट, फाइन. दैट इज अ न्यू फीचर जस्ट नाउ. लेट मी जस्ट स्क्रॉल ओवर हियर अ बिट. ओके. Illustrations means all kinds of pictures. ठीक है. Shapes, all kinds of shapes. इसमें call outs वगैरह है. I guess most of them have used it also, right? Icons,
दिखने में ऐसे दिखते हैं आपके मोस्ट स्टिक फिगर्स, जिसे हम कहते हैं स्टिक फिगर्स, ऐसे वाले स्टिक फिगर्स आप इसमें यूज कर सकते हो. सो दोज आर द वंस, दोज आर स्पेशल आइकन कैटेगरीज, राइट? Insert, illustrations. Then 3D models, that's a new feature which has come in business and in latest MS offices also. आप कोई भी एक pick कर सकते हो, डाल सकते हो. So that entire 3D model comes in and it is a proper 3D picture. Got it? So this is also a kind of picture that you can insert nowadays. And obviously जो picture select करोगे तो उससे related जो भी features है वो आपको दिखाई देगी. That's nothing to say separately. So insert illustrations. Smart Arts, ये तो आपको scientific diagrams are there. This you can use for scientific diagrams. Screenshot, this is a new feature. आप screen clipping निकाल सकते हो आप, किस चीज का आपको screenshot निकालना है. So it's going to come over here. See? So whatever screenshot you wanted to find out, वो पहले window खोल के रखो and फिर उसका screenshot आप directly डाल सकते, right? This is what you can do in illustrations nowadays over here, right? Then checkbox, ये अभी उन्होंने नया वाला डाला है. checkbox kind of a control है. इसको आप on या off कर सकते हो, right? And it can be used in your sorting filtering also. आप देखोगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आ जाता है. फॉल्स है तो ये वाले आ गए. Got it? And open it up. So it's going to use it that way. So inserting of checkboxes. ये नए कुछ नए हैं, but I thought you should see that. At least you should know ये सब points अभी आ गए हैं in new MS Office, right? Recommended charts, ये section हमने already लिख लिया है. Sparklines is interesting. Sparklines में आपके जो भी values हैं, it's applicable to all the number values. Huh? Madam, could you just check out with this one? Priyanka, why she's left? So I'm just preparing a small data. Let me just remove the focus. Now I wanted a graph of this particular data. I can put it inside one cell, all right? And that cell can be this particular sparkline. Okay? तो आप इसमें है ना, you can create a graph, line, column or win loss. Line graph, where is the data range it is asking? This is the data range. Open. इस range के अंदर मैं in this M7 I wanted the graph. So you will see this graph formed, right? इस तरीके से ये वाला. Got it? Right? And then sparklines से highest point कौन सा है, lowest point कौन सा है, negative points है या नहीं, first point कौन सा है, last point कौन सा है, ये सब आप highlight कर सकते हो. Got it? You can change it to column type also. तो ये column में convert हो गया है, right? Win or loss? Okay, अभी I'm selecting a regular monochromatic. ये वाला column है. I've just converted a sparkline that from line I have converted into column, right? Now column to win or loss. अगर win or loss का मतलब क्या है कि जहां पर भी negative values हैं, so वो नीचे दिखाई देगा यहाँ पे. Can you see? Right? And if you have this kind of this thing, you will show the colors as well. It can show you the colors as well. All right? Fine. High point, I don't want to highlight the high point. Low points, your choice. इस तरीके से, right? So these are graphs actually. Sparklines are nothing but graphs. Graphs inside one particular cell. ये वाले. So it's a graph होती है. Actually it's a graph, right? तो ये आप इसका line graph में convert कर सकते हो. I'm just changing to line graph. ठीक है? इस तरीके से. Okay? Okay. Insert में you have another feature over here which is linking. ठीक? तो you can connect one sheet to another sheet. यहाँ पे. Okay.
So I'm connecting Anaya's name to a particular file. So I can actually go ahead with connecting with the help of linking. You can connect it to existing files जो भी आपने खोले हैं, या फिर insert a link and put it to a particular file. Search for that particular file. I'm connecting it to course Excel and I connect. So you'll see there is a hyperlink over here. Can you see? Hyperlink. When I click on that hyperlink, it will take me to that file. Okay. This file is open. I close the file. There it is. Click, open. That file opens up. Close. You're back again. Right? Or to remove the hyperlinking, obviously इसके अंदर ही होगा, या फिर right click करोगे आप. Right click and remove the hyperlink. Got it? Right? This section is colorful. ये तो टेक्स्ट बॉक्स आपने डाल के रखा हुआ है. इसमें ऑब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग. ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये हर किसी को पता होना चाहिए. पर्सन हु इज हैंडलिंग एमएस ऑफिस, जिसको पता होना चाहिए. एनीवन हु नोज दिस व्हाट इज ऑब्जेक्ट. वर्ड केले काय वर्ड शिकलात तुम्ही लोक कधी? नॉट, यू डोंट नो वर्ड, or you just handle just for temporary work purpose. तेवढंच केले ना. Okay. So now this feature, inserting object linking and embedding, OLE, OLE, is a special concept of MS Office. Object linking and embedding. This can be done through inserting of objects. Okay. Means what? You can insert a PowerPoint slide inside your Excel sheet. You can insert PowerPoint slides inside your Excel sheet. PowerPoint के अंदर आप Excel का फाइल डाल सकते हो PowerPoint के अंदर डायरेक्टली. ऑलराइट. वर्ड के अंदर आप PowerPoint डाल सकते हो, एंड वर्ड के अंदर आप Excel भी डाल सकते हो. So this is one of the best features of Microsoft Office, right? It's under insert object, which is there under the text feature object, right? So जब आप object click करते हो, what is the object that you wanted to insert? It is the, say you wanted to insert a presentation. So I'm just inserting a PowerPoint presentation. I click on OK. What happens is amazing. You will get a slide over here. Hi, Anna. And not only the slide, if you see, your entire menu has changed to PowerPoint. So जैसे आप PowerPoint यूज करते हो, वैसे ही आप यूज करोगे. There it is. It's as if you are working with your PowerPoint. Can you see all this is related to PowerPoint? Hi, Anna. Yes, I'm inserting a new slide. There it is. Right? Picture, everything like your PowerPoint. Everything. Slideshow. Now, once you are outside this, ये अभी आपका बन गया Excel. Right? This is a simple picture. This is a slide picture. So इसको आप है ना शेप की तरह यूज कर सकते हो. Right? शेप आउटलाइन दे रही हूँ ना अभी. ये रेड कलर का आउटलाइन हो गया. Right? But as soon as I click this, double click this, it's working like my PowerPoint. Interesting, ना? सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यही है. एंड इट्स नॉट लाइक दिस ऑल्सो. तो वर्ड के अंदर भी आप PowerPoint डाल सकते हो, वर्ड के अंदर एक्सेल भी डाल सकते हो, PowerPoint के अंदर वर्ड डाल सकते हो, PowerPoint के अंदर एक्सेल भी डाल सकते हो. एंड without linking files, you are inserting one of the application inside the another inside another application. That is called as embedding. Object linking and embedding हो रहा है. Got it? Right?
इसमें और क्या डाल सकते हो आप? यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, इंसर्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट एंड इंसर्ट. लेट्स इंसर्ट समथिंग लाइक अ बिटमैप इमेज. पिक्चर है, आपने बना दिया. यू फिल दिस, देयर इट इज. क्लोज कर दिया. इट्स एन ऑब्जेक्ट इनसाइड योर एक्सेल. लेकिन डबल क्लिक करोगे तो you work as if you are working in Paint. Got it? So you have inserted two different objects inside your Excel. Object linking and embedding. That's important, interesting. And last यहाँ पे symbols. ये मैथमेटिक्स के बहुत बड़े बड़े सिंबल्स हैं जो इंसर्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हाँ या ना? साइन अल्फा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, प्लस और माइनस कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, बीटा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, 2 1.5 कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, ये टाइप करते करते पागल हो जाता है. सो दिस वाज आल्सो, आपके वर्ड में भी है ये ऑप्शन. यू कैन इंसर्ट इक्वेशंस. सो मैथमेटिक्स का पेपर अगर किसी को टाइप करना है तो दिस कम्स इन वेरी हैंडी, क्योंकि अल्फा थीटा बीटा गामा ओमेगा फाई साई पाई सब कुछ है इसके अंदर. ओके, अदरवाइज ड्राइंग इज फुलिशनेस, ये कर ही नहीं पाओगे आप ऐसे, राइट? सो इक्वेशंस इज वन सेक्शन. इन्होंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है सिंबल्स, इक्वेशंस, राइट? एंड इट्स काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट. तो आप इस ऑब्जेक्ट को पिक करोगे तो एज इफ इट्स अ पिक्चर आप इसको मूव करोगे एंड ये करोगे, ट्रीट करोगे उसको. ऑलराइट, राइट? सो इंसर्ट फीचर्स, सिंबल्स. एंड सिंबल्स आर सिंबल्स कि आपको डिग्री सेल्सियस डालना है, रजिस्टर्ड मार्क डालना है, इट्स योर चॉइस. यहाँ पे ऑड सिंबल्स अगर आपको डालने हैं तो यू कैन सर्च फ्रॉम दैट ऑड सिंबल्स फ्रॉम दिस सिंबल सेक्शन. क्लियर विद दिस, राइट? सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट. ये आपको पता होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट वाला. राइट? That's it. Okay. So that was one important part of it. Whether we have time for this? Okay. जल्दी से देख लेंगे. This only this much section that I wanted to show you under page layout. So this is a printing part. Page layout का मतलब है पेज माने पन्ना, उसका अरेंजमेंट करना. Page layout stands for arranging the page for printing. क्योंकि ऐसे तो एक्सेल इज यूजिंग ऑल शीट्स है ना, बट हियर इट इज यूजिंग द पेज. सो हाउ टू यूज माय इजिएस्ट वे. जैसे ग्राफ में हमने देखा ना कि ग्राफ सीखना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ग्राफ के अंदर, तो सीखना या फिर उसको प्रैक्टिस करना बिकम्स वेरी टीडियस. वैसे ही प्रिंटिंग बिकम्स वेरी टीडियस, क्योंकि ट्रायल एंड एरर बहुत करना पड़ता है प्रिंटिंग के अंदर. ऑलराइट, नाउ इन दिस व्हाट यू हैव टू डू इज always keep this print preview button on that particular quick access toolbar. ठीक है, ये पहले करो आप. ठीक है, अब ये जो फाइल है, इसका जो शीट है, मुझे इसको प्रिंट करना है. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट सी द प्रिंट प्रीव्यू कि वो कैसे दिख रहा है. ऑलराइट, फाइन. यहाँ पे लेट मी हैव अ शीट व्हिच इज वेरी बिग, या फिर बहुत सारा उसमें मैटर है, ऐसा दिखेंगे हम लोग. व्यू, नेविगेशन. लेट मी सी दिस. ओके, हाँ, ये आधा अधूरा आ रहा है, राइट? ओके, सो लेट मी जस्ट प्रिंट दिस. मुझे ये प्रिंट करना था, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना. इसमें बहुत लंबे लंबे अभी कॉलम्स भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, राइट? तो फर्स्ट सी द प्रिंट प्रीव्यू. यू विल सी दैट इट इज कमिंग हाफ वे थ्रू. बघा लक्ष दे, यू आर सीइंग ऑल दिस प्रिंट इज कमिंग हाफ वे थ्रू. इसका मतलब है जो आप दिखाना चाहते हो, स्क्रीन पे लाना चाहते हो, तो आ नहीं रहा है, राइट? देन देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नो इन प्रिंटिंग. तो पहले तो आपने क्या करना चाहिए, हमेशा ना पेज लेआउट में फर्स्ट सिलेक्ट व्हाट इज द साइज ऑफ योर पेज. वो तो बाय डिफॉल्ट A4 ही है ना. A4 से बड़ा लंबा बड़ा प्रिंटर है तो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट A3, अदरवाइज A4 का ही पेज आपको सिलेक्ट करना है, राइट? देन यू हैव टू सिलेक्ट द ओरिएंटेशन. आप पोर्ट्रेट लगाने चाहते हो या फिर लैंडस्केप लगाना चाहते हो, राइट? इफ योर कॉलम्स आर मेनी, उसको हॉरिजॉन्टल रख दो, ताकि व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर प्रिंटिंग यू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन योर पेज. कैन यू सी?
जस्ट बाय अरेंजिंग हॉरिजॉन्टल, जैसे पहले तो पोर्ट्रेट था, तो कितना आ रहा है इसमें से, आधा अधूरा आ रहा है, कैन यू सी, टिल मैथ्स आ रहा है, टोटल परसेंटेज ग्रेड आ ही नहीं रहा है. So if there are more number of columns, always select the orientation as landscape, right? अगर लैंडस्केप करने से भी सब सेट नहीं हो रहा है, तो पहले तो क्या करो, इसका जो भी साइजेस है ना कॉलम्स के, ऑटो फिट करो. ताकि ऑटो फिट करने से क्या होता है, इट ट्राइज एंड फिट्स इटसेल्फ ऑन द स्क्रीन, राइट, मैक्सिमम कॉलम्स. तो क्या करोगे, पहले साइज डिसाइड करोगे, ओरिएंटेशन डिसाइड करोगे. ओनली इफ इट इज नॉट फिटिंग, देन ट्राई टू गो अहेड विद द ऑटो फिट. ठीक है, tries to come on to that thing. ठीक है, and then you can go ahead with the margins. Normally margins इतने ही होते हैं. Margins अगर आप देखोगे तो you will see in the print preview, these are the margins which are set 1 inch most of the times, right? And this much page is now wasted actually. अभी तो जैसे दिख रहा है वो waste हो गया उतना page, right? Then means what, that you can always set the orientation to portrait. It's your choice यार, आपको क्या करना है. लेकिन ट्रायल एंड एरर तो करना ही पड़ता है आपको इसमें, राइट? आपको बार बार स्विच करना पड़ेगा बिटवीन दिस पर्टिकुलर प्रिंट प्रीव्यू एंड योर पर्टिकुलर नॉर्मल व्यू, राइट? तो पहले साइज सेट करोगे, फिर ओरिएंटेशन सेट करोगे, मार्जिन सेट करोगे, यू विल सी, ऑटो फिट करोगे, यू विल सी हाउ इट गोज बाय, राइट? एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द प्रिंट. अब प्रिंट निकालते वक्त ये जो सेक्शन है ना, इसको पेज सेटअप कहते हैं. इसका एक छोटा सा बटन है यहाँ पे, कैन से page setup means this is the section which will get open. You will see अगर ये setup to 100% है, then your print is very easily seen, आंखों को दिखाई देता है. ये परसेंटेज अगर कम हो जाए, ठीक है, तो you are going to have a tough time. So purposely मैं इसको 60 कर लेती हूँ. ऑलराइट, ओके कर दिया. अब यहाँ पे नहीं दिखाएगा, यहाँ पे, can you see? तो परसेंटेज अगर कम होता है ना, तो आपको आपका प्रिंट है ना अच्छा नहीं आएगा. यू विल स्ट्रगल टू सी दैट प्रिंट. तो कितना होना चाहिए, पेज सेटअप में जाके अगर आप देखोगे तो इट शुड बी 100 बाय डिफॉल्ट, ओके. एंड अगर वो करके भी वो फिट नहीं हो रहा है, देन उसका थोड़ा सा कम करो परसेंटेज, बट दैट शुड बी टू एटलीस्ट 75%. 75% से कम आएगा ना, तो आपका प्रिंट आपको बहुत दिक्कत देने वाला है देखने में. सो इसको है ना आप मैच करते रहो, पेज सेटअप में जाके इसका सेटिंग आप करते रहो, राइट? ठीक है, अगर मैंने इसको पोर्ट्रेट रखा इस तरीके से, दिस इज 100%, दिखने में भी सही दिख रहा है, इट्स सेटअप प्रॉपर, राइट? अगर बड़ा है तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा है. समटाइम्स यू विल सी इट समथिंग लाइक दिस, ओके. तो हमेशा है ना इसका सेटिंग ठीक से करो. ऑलवेज कीप इट टू 100 एंड 75 के ऊपर, समथिंग दैट यू हैव टू मेंशन, सेट इट अप दैट वे. ठीक है, ओके करो, देयर इट इज. ठीक है, ओके. एंड समटाइम्स यू विल बी हैविंग अ डेटा लाइक दिस आल्सो, कि जैसे आपके पास ऐसा डेटा है, सिर्फ इतना मैटर को ठीक से प्रिंट करना है, या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको उसको प्रिंट करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ही आपको प्रिंट करना था. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेट द प्रिंट एरिया. यू क्लिक ऑन सेट प्रिंट एरिया. इससे क्या होता है, यू विल गेट इतना ही एरिया प्रिंट हो जाएगा. इफ यू वांटेड स्पेसिफिक एरिया टू बी प्रिंटेड, अगर नहीं है वैसे, यू डोंट वांट इट, यू वांट एवरीथिंग, तो फिर ऑब्वियसली इसको निकाल दो एंड देन गो बाय अ रेगुलर प्रिंटिंग आल्सो यहाँ पे. ऑलराइट, once it is, as a, if I remember, if I told you कि once it is 100%, only then your present that particular print will be very nice to see. कम से कम 75%, 75 से कम करोगे तो आप इसको प्रिंट करके देखोगे ना, टुमारो डे आफ्टर जब भी टाइम मिले आपको, आ जाओ. मानसी विल हेल्प यू आउट विद द प्रिंटिंग ऑल्सो. खुद का अपना पेपर प्रिंट करके देखो पहले, कितना दिख रहा है, 65 पे कितना दिख रहा है, 75 पे कितना दिख रहा है, 100 पे कितना दिख रहा है, राइट? तो दिस आपको ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा करना पड़ेगा. ठीक, सो दैट इज इट. एंड इस शीट ऑप्शन में यू हैव द प्रिंट टाइटल्स, राइट? मीन्स व्हाट, दैट व्हेन यू हैव दिस पेज, पहले पेज पे तो ये आ रहा है, यू नो, दिस टाइटल, नेम, स्टूडेंट, जेंडर, ये सब.
लेकिन जब आप आपका पेज चेंज कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल दिस नेक्स्ट पेज आप जा रहे हो, तो यू सी टाइटल्स आर नॉट है। ओके, तो आई हैव सीन मेनी पीपल, वो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर दूसरे पेज पे पेस्ट पेस्ट कर देते हैं, फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। इन दिस यू हैव अ प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन, कैन यू सी? क्लिक ऑन प्रिंट टाइटल्स एंड मेंशन कौन सा रो है जो आपको रिपीट करना है, तो मुझे ये क्या करना है, रिपीट, राइट? ओके, दैट्स इट, एंड ओके कर दिया। अब अगर आप प्रिंट करोगे, सो फर्स्ट पेज पे तो आ ही गया है, सेकेंड पेज पे आप देखोगे ये आ गया टाइटल। सो ऑल इन ऑल बस करना इतना ही है, पहले साइज सेट करो, ओरिएंटेशन सेट करो, मार्जिन को सेट करो। मार्जिन कभी कभी और कम करने पड़ते हैं, तो फिर नैरो करो। ये वाले ऐसे वाले नैरो वाले मार्जिन भी मिलते हैं आपको, तो आप देखोगे तो दिस विल दिख, मार्जिन एकदम कम हो गया यहाँ का, तो जगह ज्यादा मिल गई आपको, राइट? सो उसको ही सेट करना होता है आपको, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट। एंड पेज सेटअप में इसका ध्यान रखो बॉस, ये कम हो जाए तो यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम रीडिंग योर ओन प्रिंट। ओके, बस उतना ही ध्यान रखना है आपको व्हेन यू आर प्रिंटिंग योर पेज, दैट्स इट। तो ये सेक्शन आपको, ब्रेक्स इज नथिंग बट द पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक्स, ये जो ब्रेक्स है ना, पेज ब्रेक्स जो है वो आपको यहाँ से दिख रहे हैं, ये नॉर्मल पेज ब्रेक्स है। आपको स्पेशली पेज ब्रेक डालना अगर है, स्पेशल पेज ब्रेक डालना है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज दिस। तब तक इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसर्ट पेज ब्रेक, ये यूं ऐसे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको। ओके, बाय डिफॉल्ट वो पेज ब्रेक डाल के ही देने वाला है आपको, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके फाइन, सो व्यू नॉर्मल, दैट्स इट। So we finish the major part of Excel. If you look at this file, new, open, share money, you can share this file directly. All right. Save as, print karna. Export again is the same as that of share. All right. Home में आपने ये देखा है, कट कॉपी पेस्ट सेक्शन, कलर्स वगैरह सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन, नंबर्स, इसके ऊपर ध्यान दो, कॉमा वगैरह डालते हो आपको स्टाइल मेंशन करना है। फॉर्मेट एज टेबल, दिस इज द करंट टेबल, टेबल फॉर्मेटेड होगा तो ये दोनों दिखाई देते हैं आपको, स्पेशली टेबल डिजाइन दिखाई देता है। यस, होम में ये एक सेक्शन है, बट इट इज नॉट दैट ग्रेट। एडिन्स होते हैं आजकल, जैसे चैट जीपीटी का एडिन आ गया है, तो यू कैन पिकअप फ्रॉम हियर चैट जीपीटी। लेकिन इसमें ना ऐसे भी आते हैं, देयर आर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक, ऐसे वाले एडिन्स भी होते हैं कि जो आप इसको यूज कर सकते हो। एक्सेल कलर, ये मिनी कैलेंडर, ये देखो यहाँ पे मेरे मेरी कैलेंडर, सो इट्स अ स्पेशल ऐप जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अलाउ किया है कि ये ऐसा आप है ना, ये ओके करो। जैसे यहाँ पे है ना, आई एम कीपिंग द कर्सर हियर, आई एम पुटिंग टुडेज डेट, तो ये यहाँ पे डेट आ गई आप, ओके, कीप द कर्सर हियर, पुट दिस डेट, आप डेट डाल सकते हो। दीज आर स्मॉल एप्स जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हैज अलाउड देम, सो दैट इज व्हाई इट इज अंडर द एडिंग सेक्शन। इफ यू वांटेड टू यूज देन यू कैन यूज दिस, ऐसा कुछ है। ओके, सो दैट इज अंडर दिस होम एडिंग्स, ठीक है। एंड एडिन निकालना है तो आपके पास लिस्ट है, यू कैन जस्ट सिंपली डिलीट द एडिन फ्रॉम हियर आल्सो। आप डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, चलो, राइट? सो वी आर सीइंग होम एडिन सेक्शन, राइट? इंसर्ट, वी जस्ट सॉ ऑल द इंसर्ट फीचर्स। व्हाट है ड्रॉ? ये सिंपल ड्रॉ है, कुछ भी ड्रॉ करो। दिस इज इंकिंग, इंक है, इंक टू मैथ है। इंक टू मैथ माने आपको ये नहीं पता है ना, पाई कैसे डालना ही नहीं पता है, तो आपने ये डाल दिया तो वो करके देगा आपको, दैट्स इंकिंग, राइट? इंसर्ट कर दिया, यू गेट दिस थिंग, राइट? ये, एंड ये इंक आप यहाँ से हाइड या ऑन या ऑफ कर सकते, दैट इज दिस रिव्यू बाय इंक, डिलीट, दैट्स इट। सो ड्राइंग सिंपल है, सिर्फ मार्क करना है आपको, हाइलाइटर पेन ये वो, दैट इज इट। पेज लेआउट अभी हमने देखा, ये सेक्शन
इन द प्रिंटिंग ऑल्सो आपको ये व्यू में चाहिए नहीं चाहिए, प्रिंट में चाहिए नहीं चाहिए, ये तो वो ऑप्शन है। व्यू, जहां पे व्यू वर्ड आएगा ना, डू यू वांट टू सी इट और यू डोंट वांट टू सी इट, ओके, ये वाला, ओके, पेज में फॉर्मूला, वी हैव सीन ऑल द फॉर्मूला सेक्शंस। फॉर्मूला ऑडिटिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। नेम मैनेजर इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट याद रखो आप इसके लिए, ठीक। वॉच विंडो इज नथिंग बट कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बार बार वॉच करना है, तो आप इसको वॉच पे लगा सकते हो। यू हैव समथिंग लाइक से फॉर एग्जांपल इन आईडीएस कॉर्पोरेट ऑफिस, इसको वॉच विंडो पे लगा दिया, ऐड वॉच कर दिया, ये वाला ओके कर दिया। मीन्स व्हाट, आप कहीं और भी काम कर रहे हो एंड यू वांटेड टू सी दैट वैल्यू, आप इसको डबल क्लिक करोगे, वो इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर, इट वर्क्स लाइक दैट, जस्ट लाइक गो टू, ओके, राइट? सो वॉच विंडो इज द सेम फॉर्मेट और फॉर्मूला, ओके। कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक ही होते हैं, प्लीज मैनुअल मत करो, यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, ठीक है? इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया पर्पसली, बिकॉज मैंने कुछ लोगों को देखा है पार्शियल मैनुअल कर देते हैं फिर सोचते रहते हैं कि मेरा कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है। सो डोंट टच दिस, इट्स ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ही रखो। डेटा में सभी ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा, रिफ्रेश डेटा, sorting, filtering, data types, right? Data tools, what if analysis, goal seek solver, outlining में subtotal, yes, right? Review, we just saw the review section over here. जब आपका डॉक्यूमेंट पूरा होता है उसके बाद आपको फिर से एक बार चेक करना है डॉक्यूमेंट, तो दीज आर द फीचर्स। व्यू, काम करते वक्त आपको कैसे देखना है आपका डेटा, दैट इज इट। एंड लास्ट इज हेल्प, हेल्प आप लिया करो, प्लीज डू नॉट कंसिडर कि अच्छा मुझे इतना आता है तो आई एम ग्रेट नाउ, ऐसा नहीं होता है। After 26 years of my experience also, I have to go back to help, I have to see, I have to study, I have to come back, understand that concepts, right? So what I have done is I have helped you understand the conceptual part of Excel. जब आपका वर्जन चेंज होता है तो यू विल रियलाइज दैट कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। पाइवट बनाने का तरीका एक जैसी होगा, उसका मीनिंग एक जैसी होगा, फिल्टर स्लाइसर वही रहेंगे, टाइमलाइन विल बी एप्लीकेबल टू डेट ओनली। So these things, you know, I want you to remember properly, all right? ना कि हंट करो कि कहाँ पे क्या रखा है। You should not never learn the application that way. अभी आपको पता है कि क्या करना है। होम का मतलब है रेगुलरली यूज फीचर्स, इंसर्ट का मतलब है आई एम इंसर्टिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर आपके हाथ में अगर कंपनी दे भी देगी ना, तो भी आपको वो हैंडल करना आ जाएगा इन 1 or 2 days मैक्स, क्योंकि वो थोड़ा इंटरफेस अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ऑलराइट, राइट? ओके, फिर भी अगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, ओके, Spell numbers क्या? it's a separate